ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع پشین میں خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ اطلاعات کے مطابق علاقے میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی نشاندہی ہوئی تھی۔ آپریشن کے دوران فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں گھیرے میں لیا اور مختلف ہتھیاروں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ شدید جھڑپ کے دوران ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جبکہ 4 دیگر دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد مختلف دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔ کارروائی کے بعد علاقے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کو ختم کیا جا سکے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے قومی ایکشن پلان کی فیڈرل ایپیکس کمیٹی سے منظور شدہ ویژن عزم استحکام کے تحت ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ حکام کے مطابق انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پشین میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بروقت کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ قوم کو سیکیورٹی فورسز کی جرأت اور مہارت پر فخر ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بہادر سپوتوں سے مؤثر اور فوری کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا بلوچستان میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی مسلسل کامیاب کارروائیاں قابل تحسین ہیں۔ وزیر داخلہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پشین میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 دہشت گردوں کا جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل صلاحیتیں قابل ستائش ہیں۔ اسپیکر نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی جرأت، مہارت اور بہادری پر پوری قوم کو فخر ہے اور بروقت کارروائی کے ذریعے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بلوچستان میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان نے مستند اور قابل اعتماد انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر افغانستان میں دہشت گردوں کے مرکزی ٹھکانوں پر فضائی کارروائی کی، تاہم متاثرہ علاقوں تک میڈیا کی رسائی روکنے سے افغان طالبان رجیم کی منافقانہ پالیسی اور دہشت گردوں کی پشت پناہی سامنے آ گئی۔ پاکستانی فضائی کارروائی کے متاثرہ مقامات پر طالبان نے افغان میڈیا اور مقامی شہریوں کی رسائی محدود کر دی ہے۔ ریاستی زیر انتظام افغان میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ایک ملبے کی فوٹیج دکھائی، جبکہ باقی تباہ شدہ ٹھکانوں کی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ پکتی کا خوست اور ننگرہار کے رہائشیوں نے بتایا کہ فضائی حملوں کے فوری بعد طالبان فورسز نے کئی علاقوں کو گھیر لیا اور دہشت گرد کئی سالوں سے یہاں اپنے خاندانوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ خوگانی، ننگرہار، خوست اور دیگر علاقوں میں صحافیوں کی رسائی کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران دہشت گرد سلیم بلوچ ہلاک ہو گیا، جسے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور دیگر نام نہاد انسانی حقوقی تنظیموں نے لاپتہ قرار دیا تھا۔ سلیم بلوچ فتنہ ہندوستان اور را سے منسلک کارروائیوں میں ملوث تھا اور حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے دوران تربت میں سیکیورٹی فورسز سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور فتنہ ہندوستان کے ذرائع نے سلیم بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نام نہاد لاپتہ افراد کے بیانیے کے پیچھے دہشت گردانہ کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے کی سازش چھپی ہوئی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نوجوانوں کو احساس محرومی کے گمراہ کن بیانیے میں الجھا کر بالآخر فتنہ ہندوستان کے حوالے کر دیتی ہے اور یہ تنظیم دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ایک سافٹ چہرہ فراہم کرتی ہے۔ فتنہ ہندوستان بلوچستان کے نوجوانوں کے جذبات بھڑکا کر انہیں مسلح بغاوت اور دہشت گردی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں بلوچستان میں ہلاک ہونے والے متعدد دہشت گرد بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل رہے ہیں، جن میں برہان بلوچ، حفیظ بلوچ، عبدالحمید، راشد بلوچ اور نیول بیس حملے میں مارے جانے والا عبدالودود شامل ہے۔ مزید یہ کہ 2025 میں قلات میں آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو اور مارچ 2024 کو گوادر حملے میں مارے جانے والا دہشت گرد کریم جان بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی نام نہاد لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھے۔ ان دہشت گردوں کی ہلاکت سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ نام نہاد لاپتہ افراد کا پروپیگنڈا بے بنیاد اور سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ ماہرین کے مطابق بلوچ یکجہتی کمیٹی کو را اور نام نہاد انسانی حقوقی تنظیموں کی سرپرستی حاصل ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں فیڈرل کانسٹیبلری کے قلعہ پر کوڈ کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کرک کے مطابق درگاہ شہیدان کے علاقے میں ایف سی کی قلعے کو نشانہ بنایا گیا۔
क्वाडकॉप्टर के हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकारों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में रेस्क्यू के 2 एहलकार जख्मी हो गए। डीपीओ करक का कहना है कि वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और मुलजिमान की तलाश जारी है, जबकि सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से कतर का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक दौरे के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आला सतह के वक्त भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म और अमीर कतर की मुलाकात होगी, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि मुलाकात में मुआशी ताउन, तवानाई के शोबे और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर भी बातचीत होगी, जिससे दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की तवक्को है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की सरबराही में वज़ारत दाखिला के सरकारी वफ़द ने 2 रोज़ा दौरा अनकरा मुकम्मल करके वापस लौट आए हैं। दौरे का मकसद पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दाखिली सलामती और इदारा जाती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना था। दौरान क़याम अनकरा वज़ीर मुमलिकत ने तुर्क नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और पेशा वराना रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफ़द ने तुर्किया की पुलिस, इंसदाद दहशतगर्दी, इमिग्रेशन और नारकोटिक्स से मुतालिका महकमों का भी दौरा किया, जहां बाहमी तजुर्बात के तबादले और तकनीकी शराकत दारी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से रमज़ान मुबारक के मौके पर नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क हुक्काम तक पहुँचाया गया। दोनों ममालिक के हुक्काम ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अमन व सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का आदा किया और मुस्तकबिल में करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल खवारिज के हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज को मानसेरा में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज की नमाज जनाजा में अहले खाना, फौजी अफसरान और शहरियों ने भी शिरकत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल खवारिज के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और 1 सिपाही शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक इस दौरान फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज भी मारे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बन्नू को एक बड़े सहाने से बचा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। इजलास में बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया गया। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ब्रीफिंग दी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तफाक हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम 1 वैन मैसर होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल कर या फिर अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विस के स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मैयत को अस्पताल दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मनसूबों का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका इदारों के सरबराहान शरीक हुए। शहराए भुट्टो और करंगी कॉजवे पुल 67% मुकम्मल, करीमाबाद अंडरपास 85%, मुनव्वर चौरंगी अंडरपास 75% मुकम्मल कर लिया गया है। स्कीमों की लागत 86.94 अरब, कराची के लिए 38.83 अरब मुख्तस, 22.36 अरब जारी, 13.15 अरब खर्च हो चुके। 24 टाउन्स में सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब, 26 से बड़ी सड़कों की मरम्मत के लिए 8.53 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक मनसूबों की तकमील में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जारी फंड्स का मौसर इस्तेमाल, गैर मयारी तामीरात पर ज़ीरो टॉलरेंस और साइट कमेटी माहाना रिपोर्ट पेश करे। बेहतर सड़कें, हमवार ट्रैफिक और मयारी ज़िंदगी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की तरक्की सिंध की तरक्की है और आवाम को नजर आने वाले नताइज हर हाल में यकीनी बनाए जाएंगे। खबर यह है कि कराची के इलाके कोरंकी में ऑयल टैंकर और तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 कमसुन बच्चे और बच्ची जान बहक हो गई। उधर इत्तेहाद टाउन में मुलजिमान की फायरिंग से 1 शख्स जान बहक हो गया, जबकि कराची पुलिस ने 1 हफ्ते के दौरान पुलिस मुकाबलों में 6 डकैतों को हलाक और 52 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में।
कोरंगी क्रॉसिंग पर ऑयल टैंकर की टक्कर से कमसिन बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई और ऑयल टैंकर को तहवील में ले लिया। बच्ची की शनाख्त सायरा के नाम से हुई। कोरंगी पासबान चौक के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 3 साल बच्चा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताप न हुए चल बसा। बच्चे की शनाख्त 4 साल वसीम के नाम से हुई। इत्तेहाद टाउन के इलाके मस्ताना चौक के करीब फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया इब्तदाई तौर पर दुश्मनी का शाखसाना जाहिर होता है। मकतूल मतीन और आबिद मोटरसाइकिल पर सवार थे। दोनों वाले मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की तलाश जारी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर कीमाड़ी में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इसकी शनाख्त सलीम के नाम से हुई। कराची पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान 6 डकैत मार गिराए। कराची पुलिस और मुल्ज़िमान में 37 मुकाबले हुए, जिनमें 37 जख्मी डाकू समेत 52 मुल्ज़िमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एक हफ्ते के दौरान 4 मुल्ज़िमान से 136 मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असला भी बरामद हुआ। मजमूई तौर पर कराची पुलिस ने 36 मोटरसाइकिलें और 2 बड़ी गाड़ियां भी बरामद की। दूसरी जानिब कराची के इलाके नॉर्थ नासिबाबाद में रिहायशी फ्लैट्स में होने वाले धमाके की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है। बम नाकारा बनाने वाले अमले ने धमाके की असल वजह गैस के अखराज को करार दे दिया है। हुकाम के मुताबिक चायबुकुआ से गैस सिलेंडर फटने की कोई शवाहिद नहीं मिले, जबकि मुतासर फ्लैट से किसी फटे हुए सिलेंडर या उसके टुकड़े भी बरामद नहीं हुए। मुतालिका अफसर का कहना है कि गैस के पाइपलाइन लिफ्ट के करीब से गुजर रही थी, जिसके बाद धमाका शदीद नौइयत इख्तियार कर गया और लिफ्ट गिर गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुमकिना तौर पर घर में गैस का चूल्हा खुला रह गया था और गैस की अचानक बहाली से फ्लैट में गैस भर गई, जिसने धमाके की शक्ल इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता रोज़ धमाके के बाद आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में एक बच्चा जान बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए थे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र कहते हैं, रमज़ानुल मुबारक बरकतों, नेकियों और जिद्दोजहद का महीना है। शहर कायद में अफसोसनाक वाक़यात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। सोल्जर बाजार गैस लीकेज वाक़े में 17 कीमती जानों का ज़िया इंतज़ामी नाकामी है। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि शहर में अफसोसनाक वाक़यात का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। पुल प्लाजा सानिया 1 माह बाद भी हक़ाइक़ सामने न आ सकी। शहर कायद में मौसम निगरानी और इंतजामिया का फुकदान तशवीशनाक है। कराची दुनिया के बदतरीन रिहायशी शहरों में शामिल हो चुका है। शहर की मजबूरी सूरत-ए-हाल ये है कि एक जानिब शहर के वो सारे लोग, शहर की वो पार्टियां, चाहे वो MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मान रही या किसी न किसी तरीके से वफाक के अंदर और किसी तरह सूबे के अंदर हुकूमत की हिस्सेदार रही। MQM और पीपल्स पार्टी, MQM के पिछले 40 साल से 1986 से लेकर आज तक हर हुकूमत का हिस्सा रही है। हर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का किसी न किसी तरह हिस्सा रही। अपने मफादात समेटते रहे। इसी तरह करप्शन का बाजार गर्म रहा, इदारे तबाह होते रहे, इदारों का सौदा किया जाता रहा। अमीर जमात इस्लामी मुनीम जफर ने कहा कि सियासी जमातें दहाइयों से कराची के मसाइल हल करने में नाकाम है। बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम और मेगा सिटी गवर्नमेंट ही वाहिद हल है। मुनीम जफर ने कहा कि जीने दो कराची तहरीक शहर के हकूक़ की जद्दोजहद है। 27 फरवरी को हाफिज नईमुर रहमान औरंगी टाउन में, 28 फरवरी को लियाकताबाद में अवामी इज्तिमा और 1 मार्च को मलिर आर्ट सिटी ग्राउंड में खिताब करेंगे। इंशाअल्लाह कराची को इसका हक दिलवा कर रहेंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जमात इस्लामी के रहनुमा मुनम जफर की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि जमात इस्लामी ने रमज़ान मुबारक में भी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की ठान ली है। उन्होंने कहा कि सोल्जर बाजार और नाजिमाबाद के वाक़यात पर रेस्क्यू ऑपरेशन सबके सामने हुआ और मुतालिका इदारों ने बर्बाद कार्रवाई की। उनका कहना था कि ये एक इनफरादी मामला है और इसमें किसी किस्म की सरकारी गफलत का कोई ताल्लुक नहीं। सादिया जावेद ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गोल प्लाजा के मुतासरीन की बर वक्त मदद की और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मजीद कहना था कि कराची के 9 टाउन्स पर बराजमान लोग अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए झूठ बेचने की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जमात इस्लामी को कराची में अपने सिवा कोई नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि अवाम हकाइक से आगाह है और बेबुनियाद इल्जाम से सच को छुपाया नहीं जा सकता। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।